Hello student, myself Lakshmilal Sudhar. Today we will discuss class 12th mathematics chapter 2nd inverse trigonometric functions part 3.1. In this video we will discuss properties of inverse trigonometric functions, few properties. In the previous sessions we learned about principal value branches of inverse trigonometric functions. हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. तो एक बार वापस देख लेते हैं. साइन इनवर्स एक्स, द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स whose principal value branch is माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये होती है और क्लोज्ड इंटरवल. और इसका जो डोमेन होता है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल. इसी टाइप सेम द इफ यू कंसिडर कोस इनवर्स एक्स देन डोमेन इज सेम एज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड द रेंज ऑफ द कोस इनवर्स is 0 to pi, closed interval 0 to pi, and the range of the function will be minus pi by 2 to pi by 2, but 0 is not included, यानी इसमें 0 नहीं होता है. Similarly sec inverse x, sec inverse में क्या होता है सेम डोमेन एज cosec inverse. cosec inverse फंक्शन का जो डोमेन है वो है सेम टू सेम द डोमेन ऑफ sec inverse x, and the range of sec inverse x is or principal value branch is 0 to pi closed interval but pi by 2. The element pi by 2 does not belongs to its range. And let us consider another function tan inverse. Tan inverse is a inverse trigonometric function which define on set of real numbers, means all values we can take as its input and the output or range principal value branch is minus pi by 2 to plus pi by 2, where the interval is open interval. It means minus pi by 2 and pi by 2 both are not included. And same it happens in cot inverse x, यानी एक फंक्शन cot inverse x, इसका भी जो डोमेन है वो क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to pi, यानी 0 से पाई के बीच के सारे नंबर्स होंगे यानी सारे एंगल्स होंगे एंड 0 एंड पाई बोथ आर नॉट इंक्लूडेड. ये हमने इससे प्रीवियस में देखा था. अब इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हमने कुछ डिस्कस किया था. ये जो फंक्शंस है ये डिफाइन किस पर है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होंगे तभी ये इनके इनवर्स डिफाइन होंगे. तो लेट अस कंसिडर बाइजेक्टिव फंक्शन f डिफाइन ऑन सेट a to b, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन because if the function is bijective then there exists function g defined on b to a where every element y of b set have an preimage x or the image of y under the function g is x. It is happens only when image of x under the function f is y. हमने ये देखा था f of g यानी कंपोजिशन फंक्शन f of g क्या होता है आइडेंटिटी function in set B and g of f is an identity function in set A, and the function g is denoted by f inverse. Write or replace the value of g as f inverse, then f of g will become f of f inverse and the element from set B. तो एलिमेंट जो हम लेंगे B से वो क्या लेंगे y. तो इसका जो बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन सो द इमेज ऑफ y विल बी एज सेम y, तो वो भी y ही होगी. इसी टाइप से अगर हम g ऑफ f इफ़ वी कंसिडर g ऑफ f यानी g ऑफ f कंसिडर करते हैं और g को हम किससे रिप्लेस करते हैं f इनवर्स से, तो क्या बन जाएगा f इनवर्स, ये हो जाएगा g की जगह ऑफ f. g f इनवर्स ऑफ f इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन इन द सेट A. सेट A से जो एलिमेंट्स लेते हैं वो कौन से होंगे x है, तो ये x है तो उसकी इमेज क्या होगी वो भी x होगी. तो बाय यूजिंग दिस वी नो दैट द फंक्शन साइन डिफाइन ऑन साइन जो फंक्शन है वो उसको हमने देखा था
if we restrict the domain of sine function as closed interval minus pi by 2 to pi by 2, the range of the sine function will be a closed interval minus 1 to 1. यानी जो अगर इसकी डोमेन ये है तो इसकी रेंज है, तो इसमें ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन. एंड इफ इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स. और एट दैट टाइम the codomain of sine function will become the domain of sine inverse and the range will be the domain of the sine function. ये इसका रिवर्स हो जाएगा. हाँ, अब देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या बनेगा कि f की जगह हमने क्या कंसिडर किया, साइन. ये हमने f के कंसिडर किया, और साइन इनवर्स दिस इज एस f इनवर्स. देन f of f inverse, f of f inverse means f of f inverse. If we consider an element y in the, हाँ अब ये y किस में होगा, सेट b. सेट b कौन सा है, माइनस 1 to 1, माइनस y बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1. Then f of f inverse can be written as sine of sine inverse of y, ऐसे हम लिख सकते हैं. यानी और इसकी वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू y. यानी एक हिसाब से हम देखते हैं कि साइन और साइन इनवर्स दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट मिल करके ये मिल गया. यानी हमारे पास एक वैल्यू है. अगर हम ऐसे ही सिमिलरली इफ़ यू कंसिडर f इनवर्स ऑफ f x इक्वल टू x, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो f इनवर्स मीन्स क्या है, साइन इनवर्स of sine x equal to, it can be written as sine inverse of sine x by the property of composition function x. अब देखो here ये sine inverse और sine, here sine inverse is outside means first sine inverse then sine, and in the previous first sine then sine inverse. The element taken from set B when the sine inverse is inside the bracket, and when sine is inside the bracket then the element taken from set A. यानी जिसमें फंक्शन a से इससे डिफाइन होता था, इससे लिया था, तो ये तब ये जो वैल्यू आ रही है वो x होती है. तो इसका मतलब साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल आउट कौन सी कंडीशन में होंगे, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x है. तो x की वैल्यू किस पे होगी, x की वैल्यू सेट a से होगी. अगर हम इसकी बात करते हैं तो x की वैल्यू इसमें देखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होनी चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा, नहीं था नहीं. यानी हमने इसमें ये देखा कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस इट फॉलोज दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स x, हियर द x साइन इनवर्स मीन्स साइन इनवर्स डिफाइन ऑन माइनस 1 to 1 to माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, ये जो है. तो इसमें जो x की वैल्यू है वो किससे है, इसके डोमेन से. यानी वैल्यू ऑफ x विल बी x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, और वी कैन राइट इज दैट द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 1, और वी कैन राइट इट एज ऑल्सो मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1. हम इसको मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1 इससे भी डिनोट करते हैं. इफ़ यानी ये पार्ट है, इफ यू राइट साइन इनवर्स साइन x, here the value of x means sine function defined on closed interval minus pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to 1. ये तो ये जो x की वैल्यू वो कहाँ से है, फ्रॉम डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, एंड सम डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल. और ये यानी ये it is happens only when sine inverse function is inside the bracket, then x taken from domain of the inverse function. When sine function not a inverse inside, sine function is inside the bracket, then x taken from domain of the sine function, यानी उसके डोमेन से लेंगे. Let us consider the functions, inverse trigonometric functions and their domain के parts consider. Means here the value of x will be from the closed interval minus 1 to 1. Then we observe that sine of sine inverse x equal to x
ये कौन सी कंडीशन होगी? जब x बिलोंग्स टू, यानी जो मोड x बिलोंग्स टू होगा -1 to 1. If x does not belongs to -1 to 1, then we cannot write sin of sin inverse x is equal to x. ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं जब ये. Similarly, when y equal to cos inverse means जब cos inverse x की बात करते हैं, then x belongs to same -1 to 1 means here the value of x will be from the set -1 to 1, and we can write it as x mod x will be less than or equal to 1. ये भी लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? the value of x is greater than equal to -1 and less than equal to 1. ये वैल्यू होगी तभी हम क्या पर लिख पाएंगे? cos of cos inverse x equal to x. Then by using same way cosec inverse, in the condition of cosec inverse the value of x will be from this, means here we can observe that r minus -1 to 1 means here the value of x is either less than or equal to -1 or greater than or equal to 1. ये होगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इससे ग्रेटर होगी तभी हम ये वैल्यू लेंगे. नेक्स्ट कंसिडर सेक इनवर्स. सेक इनवर्स जब कंसिडर करते हैं तो ये देखते हैं इसका डोमेन कौन सा ये है, मीन्स सेम ये. तो हियर द वैल्यू ऑफ x मीन्स mod x कैसे लिख रहे हैं? mod x विल ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये अभी हमने देखा था पॉजिटिव होता था क्या होता है, नेगेटिव होता था क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ये. हियर नेक्स्ट टेन इनवर्स में भी सेम है सेट. हियर r मीन्स x कैन बी एनी रियल नंबर. x को हम कोई सा भी रियल नंबर कंसिडर कर सकते हैं. उस कंडीशन में टेन इनवर्स x विल बी x. एंड if we consider cot inverse, then the domain of this function is also a set of real number, so we can take any x, means by using this the values of x we can define that cot inverse. Then what will be the values or image of the element टेकन फ्रॉम इट्स डोमेन से कोई भी एलिमेंट लेंगे किसके? साइन इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन के डोमेन से. देन व्हाट विल बी मीन्स सेम रहेगा, पर इट डिपेंड्स ऑन वैल्यूज, मीन्स वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन से ही होनी चाहिए, उससे अलावा नहीं हो सकती. जैसे अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो वी कैन कंसिडर इट ओनली फॉर सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में. और कोस इनवर्स और साइन इनवर्स में हम x इक्वल टू 2 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी राइट साइन इनवर्स 2 देन इट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज साइन की वैल्यू कभी 2 नहीं होती है. तो ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट लेट अस कंसिडर हियर द रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज. तो हम यहाँ पर जो ये x देख रहे हैं साइन इनवर्स x, उसमें जो x है ये वैल्यू होती है उसके डोमेन से, पर यहाँ जो y देखेंगे वो y की वैल्यू किस में होगी? इससे होगी. यानी साइन इनवर्स x की जो वैल्यू वो तो है x बिलोंग्स टू -1 to 1, बट द वैल्यू ऑफ y विल बी हियर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से. तो देखते हैं और क्या होगा. साइन इनवर्स ऑफ साइन y, हियर जो y ये जो y है y बिलोंग्स टू ये. इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस देन वी कैन नॉट राइट इट एज, बिकॉज the sine inverse defined on -1 to 1 closed interval -1 to 1 to closed interval -π/2 से π/2 इस पर डिफाइन होता है. यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये होती है. अगर हम इसके अलावा वैल्यू ब्रांच कंसिडर करते हैं उस कंडीशन में हम वो देख लेते हैं, बाकी ये नहीं हो सकता. तो अब ये कब पॉसिबल होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन y इक्वल टू y व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज फ्रॉम इट्स कोडोमेन और रेंज ऑफ द साइन इनवर्स और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर डिपेंड करेगा. सिमिलरली व्हेन इन द कंडीशन ऑफ कोस इनवर्स वी विल टेक द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 0 to π, 0 से π के बीच में कोई सी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी, यानी कोस इनवर्स ऑफ कोस y इक्वल टू y होगा. अगर अदर देन दिस एग्जाम्पल अगर y की वैल्यू रहते हैं हम 3π/2, अब 3π/2 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, so we cannot write it as cos inverse cos
3π/2 इक्वल टू 3π/2, ये हम 3π/2 इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं। कौन सी कंडीशन में? जब ये y की वैल्यू 3π/2, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सिमिलरली कोसेक इनवर्स, जब हम कोसेक इनवर्स की बात करते हैं तो क्या होगा? जो y है, y किससे है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, बट 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, यानी इसमें y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अदर देन 0 एंड बिटवीन दीज टू मीन्स -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यूज़ होगी, तभी हम क्या लिख पाएंगे? कोसेक इनवर्स कोसेक y विल बी इक्वल टू y। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से सेक इनवर्स में भी क्या होगा? सेक इनवर्स सेक y इक्वल टू y, इट इज़ हैपन ओनली द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से होगी, तभी हम ये लिखेंगे। इसी टाइप से व्हेन वी कंसिडर टेन इनवर्स, देन टेन इनवर्स टेन y ओबिक y, इट इज ऑल्सो इक्वल टू y। इट हैपन्स ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ y, यानी जो y की वैल्यू वो किससे होनी चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी -π/2 से π/2, पर ये दोनों -π/2 π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। एंड सेकेंड कंसिडर कोट इनवर्स, देन for this same but the value of y will be from its principal value branch से, यानी ये जो लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से होगा, तभी हम इक्वल टू, यानी ये दोनों को हम कैंसिल करके इक्वल टू y लिख सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट राइट इट एज। मीन्स टुडे वी लर्न दैट अबाउट वन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक प्रॉपर्टी हमने देखी, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? यानी f ऑफ g और g ऑफ f कैसे हम फाइंड करते हैं और आंसर क्या आता है? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, हियर द वैल्यू ऑफ x, तो हमको क्या देखना है? इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव साइन इनवर्स, देन हियर द वैल्यू ऑफ x विल बी फ्रॉम द साइन इनवर्स डोमेन। साइन इनवर्स का जो डोमेन है उससे होगी, तो साइन इनवर्स का डोमेन कौन सा है? ये। अब दूसरा इसी टाइप से साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई, इसमें क्या है? इनसाइड में साइन वाई, तो साइन वाई का डोमेन कौन सा होगा? ये वाला डोमेन होगा, या ये हम कंसिडर कर सकते हैं इस जो साइन इनवर्स है उसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, तो वाई की वैल्यू इससे होनी चाहिए -π/2 से π/2। सिमिलरली इन द कंडीशन ऑफ कोस इनवर्स के कंडीशन में भी क्या होगा? if cos inverse inside, then the value of x will be from its domain, cos inverse का जो डोमेन होता है उससे। and if we write cos inverse outside the bracket, then here the value of y will be 0 to pi, 0 से pi के बीच में होगी। टाइप से cosec inverse x, it happens only when the value of x is any real number other than -1 to 1, -1 और 1 के बीच के रियल नंबर्स को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड कोसेक इनवर्स कोसेक वाई इट इक्वल टू वाई, इट हैपन्स ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ वाई इज फ्रॉम द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स फंक्शन। और सेम ऐसे सेक इनवर्स और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स के लिए भी ऐसे ही है। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा? कोई सब क्वेश्चन सोल्व करते वक्त we can cancel out sin function and its inverse by looking the value of y और x, यानी y और x की वैल्यूज देखेंगे। और वो कैसे देखेंगे कि साइन इनवर्स x इनसाइड द ब्रैकेट है, तो साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो देखेंगे, और साइन इनवर्स आउटसाइड द ब्रैकेट है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे, तभी हम इसको कैंसिल कर पाएंगे। इफ़ इट नॉट हैपन देन वी कैन नॉट राइट इट एज। Let us consider an example. The example is find the value of each of the expressions in exercise 16 to 18। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। We know that sin inverse of sin x is equal to x when the value of x belongs to -π/2 to π/2, but here we observe that 2π/3 is a value which does not belongs to in the principal value branch of sin inverse. So how can we solve? So by converting 2π/3 into a value which lie in the principal value branch। कैसे करेंगे?
तो आंसर देखते हैं बाय राइटिंग इट एज solution sine of 2 pi by 3 equal to sine inverse sine 2 pi by 3. How can we convert? So we know that sine pi minus theta is equal to sine theta, as we studied it in class 11th. So it can be written as sine of pi minus 2 pi by 3. After solving it, we get sine inverse of sine pi by 3. Now pi by 3 value lie in the principal value branch of sine inverse. So sine inverse of sine pi by 3 will be equal to pi by 3, as pi by 3 belongs to minus pi by 2 to pi by 2, and hence we can write it as sine inverse sine of 2 pi by 3 equal to pi by 3. Now let us consider another example, question number 17. It is given that tan inverse, we know that tan inverse of tan x equal to x. It happens only when the value of x belongs to minus pi by 2 open interval to pi by 2. Now here 3 pi by 4 is more than pi by 2, means does not lie in the principal value branch. So first we have to convert. So how can we convert? Let us consider tan inverse of tan. So here we observe that 3 pi by 4 does not belongs to the principal value branch of tan inverse, that is minus pi by 2 to pi by 2 open interval. So first we have to convert 3 pi by 4 or tan 3 pi by 4 in such a way that we get the angle lie in the principal value branch. How can we? तो solution कैसे लिखेंगे? tan of यानी tan inverse of tan 3 pi by 4 we have to convert into a value of angle lie between the principal value. अब हम कैसे कंसिडर करते हैं? तो we know that tan of pi minus theta equal to minus tan theta, or we can write it as tan theta equal to minus of tan pi minus theta, ऐसे लिख सकते हैं. तो by writing it as tan inverse tan of pi minus, पर here minus, तो minus tan of pi minus 3 pi by 4, it will be as equal to tan inverse, किसके इक्वल आएगा? tan inverse ये माइनस और inside value if we simplify then we get tan of pi by 4. अब tan pi by 4 will है. अब we know that minus of tan theta equal to tangent of minus theta. So it can be written as tan inverse of tan minus pi by 4. So it can be written as minus pi by 4, as the value minus pi by 4 belongs to in the principal value branch of tan inverse. यानी माइनस पाई बाई 4 क्या होता है? इसके बीच में होता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच. सो tan inverse of tan 3 pi by 4
इक्वल टू -π/4, यानी यहाँ पर हमें -π/4 आया। ऐसा नहीं कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो ये ध्यान हमको रखना है। नेक्स्ट लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज NCERT book. Example number 9th. In this example we are given that find the value of sin inverse of sin 3π/4. यानी यहाँ पर देखते हैं but we know that sin inverse of sin x equal to x, where x must be lie from principal value branch of sin inverse. Now if we forget about this, अगर हम भूल जाते हैं तो क्या आंसर लिख देते हैं हम, ये लिख देते हैं sin इनवर्स ऑफ sin 3π/5 equal to 5, which is wrong as 3π/5 does not belongs to the principal value branch of sin inverse, which is -π/2 to π/2. तो ये तो हमारे से मिस्टेक हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं, बाय यूजिंग हाउएवर sin 3π/5 को कन्वर्ट करेंगे sin पाई माइनस थीटा की फॉर्म से। साइन पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। सो आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट साइन 2π/5। नाउ 2π/5 बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। सो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5 विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5, or after solving we get 2π/5. So we have to remember that when the value does not lie from the principal value branch, then we have to convert it into such a value so that the value must lie in the principal value branch, यानी principal value branch में आ जाए। अगर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो हम आंसर लिख रहे हैं वो रॉन्ग, इसलिए आपको विशेष तौर से याद रखना है। Thank you. This is for today, and next video we will discuss the one more properties of inverse trigonometric functions.